Hello dear students, here we are beginning with inverse trigonometric function. Actually the properties of inverse trigonometric function. So the first is sin inverse x upon under root 1 plus x square equals to tan inverse x. This we'll use as a formula where x belongs to R. Sin inverse x upon under root 1 plus x square is equal to tan inverse x. So just see sin inverse x upon 1 plus x square equals to tan inverse x. So here we let x equals to tan y. What we let? X equals to tan y. Then obviously y equals to tan inverse x. Now just see under root 1 plus x square है ना, तो under root 1 plus x square is equal to 1 plus tan square y which is actually equal to sec square y and then sec y for the given values. ठीक, तो ये जो वैल्यू है sin इनवर्स x on under root 1 plus x square, sin inverse x upon under root 1 plus x square can be written as now sin inverse tan y. x की जगह क्या टप कर दिया tan y, x की जगह tan y एंड देन ये क्या आपका नीचे हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर sec y. tan y और sec y को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, विल गेट sin इनवर्स sin y, देन इट इज इक्वल टू y एंड y इज व्हाट एक्चुअली इट इज tan इनवर्स x. y किसके इक्वल है? tan इनवर्स x के. सो sin इनवर्स x upon under root 1 plus x square is equal to tan inverse x. Similarly, we can prove another one, but we need to learn these two formulae. Okay, cos inverse 1 upon under root 1 plus x square equals to tan inverse x. So here cos inverse 1 upon under root 1 plus x square equals to tan inverse x. प्रूव कैसे कर लेंगे? x equals to tan y पुटअप करेंगे and y equals to tan inverse x. Okay, just prove it yourself. Just see another one. Tan inverse x upon under root 1 minus x square equals to sin inverse x and then tan inverse under root 1 minus square upon x equals to cos inverse x. ये इसकी वैल्यूज है विद इन द लिमिट्स. अब tan इनवर्स ये है, tan इनवर्स x upon under root 1 minus x square equals to sin inverse x. क्या करेंगे? x को sin y पुटअप कर देंगे. We put x equals to sin y, then y equals to sin inverse x. Now just see under root 1 minus x square है, this can be under root 1 minus sin square में एंड देन cos स्क्वायर y. तो जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? cos y के. तो जो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ गया? sin y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह cos y. तो यहाँ पर cos y पुटअप कर दिया. तो tan इनवर्स दिस इज tan y, तो tan इनवर्स tan y इक्वल्स टू y. तो डेफिनेटली tan inverse x upon under 1 minus x square equals to sin inverse x. Why? Because y is equal to sin inverse x. Okay. Another one, you can prove it yourself by substituting x equals to cos y, and it is tan inverse under root 1 minus x square upon x equals to cos inverse x within the limits 0 to 1. 1 is included. Y equals to cos inverse x, put up कर देंगे, x equals to cos y and just prove it. Other thing, sin inverse x equals to cos inverse under root 1 minus x square, x lying between 0 and 1, cos inverse x sin inverse under root 1 minus x square, x lying between 0 and 1, and then cos sin inverse x equals to sin cos inverse x equals to under root 1 minus x square. We could go through the first one first. Sin inverse x equals to cos inverse under root 1 minus x square, sin inverse x equals to cos inverse under root 1 minus x square. तो we let sin inverse x equals to y, then x equals to sin y. तो 1 minus x square क्या हो जाएगा? Under root 1 minus x square equals to 1 minus sin square y which is equal to cos square y and it is cos y finally. तो cos inverse under root 1 minus x square किसके इक्वल हो गया? cos inverse under root 1 minus x square. cos inverse cos y के इक्वल, जो किसके इक्वल हो गया? y के. y cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया ना, और y एक्चुअली हमारा था क्या? y था sin इनवर्स x. सो sin इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली यू कैन डू अनदर वन, cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हियर वी लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू y एंड देन x इक्वल्स टू cos y. ओके, जस्ट कंटिन्यू विद दैट. द थर्ड वन, cos sin inverse x is equal to sin cos inverse x is equal to under root 1 minus x square. बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं है. cos sin inverse x sin cos inverse x is equal to under root 1 minus x square. एक बार इसको इसके इक्वल कर लें, एक बार इसको इसके इक्वल कर लें. जस्ट सी sin inverse x को क्या लेट कर लिया? y.
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को वाई ले लिया, देन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक, अब एक चीज़ हमें पता है कि कॉस वाई कैन बी रिटन एज अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कॉस वाई इक्वल्स टू साइन वाई की वैल्यू रख दी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कॉस वाई किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई कितना था, वाई है साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो कॉस वाई की जगह साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड के लिए कॉस इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं। ठीक, देन एक्स इक्वल्स टू कॉस टी, थीटा कुछ भी लेट कर लें, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, देन एक्स इक्वल्स टू कॉस टी। अब साइन टी क्या चाहिए, साइन, तो साइन टी इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी। टी कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, टी कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, रख दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, एक इक्वेशन थी कॉस साइन इनवर्स एक्स, दूसरी साइन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स, और दोनों किसके इक्वल है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों LHS भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स कॉस। ठीक, और यहाँ से ये सॉरी इट इज नॉट कॉस साइन इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, थ्री थीटा वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टैन थ्री थीटा इनवर्स के टर्म्स में। सो थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। तो साइन इनवर्स एक्स को वाई लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, देन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। अब साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला तो पता है ना हमें, साइन थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री साइन वाई माइनस फोर साइन क्यूब वाई, थ्री साइन वाई माइनस फोर साइन क्यूब वाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन थ्री वाई। तो साइन थ्री वाई ऐसे ही रखा, साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के, साइन वाई एक्स के, तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ये फॉर्म देखते ही दिख जाएगी आपको कि थ्री थीटा की फॉर्म की है। साइन थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, साइन उधर ले गए, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, तो थ्री वाई साइन इनवर्स एक्स के इक्वल वाई की वैल्यू पुटअप कर दो, थ्री साइन इनवर्स एक्स, वाई किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के, वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स। सो थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। सिमिलरली कॉस का यूज कर लेंगे, कॉस का भी प्रूव हो जाएगा, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है तो उसको ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, कॉस थ्री थीटा यू नो क्या होता है। ठीक, तो हो जाएगा आपका फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो वैसे ही। थर्ड, थ्री टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, टैन थ्री थीटा के लिए, टैन थ्री वाई। ठीक, तो टैन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल लेट कर लिया, लेट टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, देन एक्स इक्वल्स टू टैन वाई, एक्स इक्वल्स टू टैन वाई। तो टैन थ्री वाई, वही थ्री थीटा वाला बोला, तो थ्री टैन वाई माइनस टैन क्यूब वाई अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर वाई। टैन थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री टैन वाई माइनस टैन क्यूब वाई अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर वाई। सो थ्री वाई टैन उधर हो गया, थ्री टैन वाई कितना था, एक्स, एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, टैन थ्री वाई, थ्री टैन वाई माइनस टैन क्यूब वाई अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर वाई। टैन वाई की जगह एक्स पुटअप कर दिया, तो ये कितना हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, थ्री वाई है टैन स्क्वायर, टैन इनवर्स में आ गया, तो थ्री टैन इनवर्स एक्स, वाई की जगह क्या पुटअप कर दें, टैन इनवर्स एक्स। क्यों, वाई कितना है, टैन इनवर्स एक्स है ना, तो थ्री टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके ओके, just do some questions. Find the value of cos sec inverse x plus cos sec inverse x, cos sec inverse x plus cos sec inverse x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec inverse x plus cos sec inverse x। ठीक, we discussed it earlier, sec inverse x plus cos sec inverse x equals to पाई बाई टू। तीन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, एंड दिस वन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यार क्या गिवन है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या पुटअप कर दें, पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है। अब ये बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ टैन
टू tan इनवर्स 1/5, tan 2 tan इनवर्स 1/5, तो tan 2 tan इनवर्स 1/5 ऐसे रख देते हैं. अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्म में है ना, और tan में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाहर tan है, तो tan इनवर्स x वाला फॉर्म मिल जाएगा हमें. ये रख लिया. तो 1/5x है ना, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है. तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर. tan इनवर्स 2/5, और ये कितना हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई होने के बाद 24/25. सो tan इनवर्स 5/12 इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 5/12. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू हो गई 5/12. ओके. अब बोल रहा है if xy is less than 1, if xy is less than 1 and tan inverse x plus tan inverse y equals to pi/4. If xy is less than 1 and tan inverse x plus tan inverse y equals to pi/4, then write the value of x plus y plus xy. Just see, थोड़ा सा यूज़ करेंगे माइंड. हमें पता है ये गिवन है इन्होंने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू pi/4 दे रखा है, और फॉर्मूला हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सो इट इज इक्वल टू, जस्ट सी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू pi/4, क्योंकि इसकी वैल्यू pi/4 दे रखी है उन्होंने. x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इधर है क्या, और ये हो गया tan pi/4. भाई फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये वैल्यू pi/4 दी है, ये रख दी, ये ऐसे ही रखा. x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई tan pi/4 के इक्वल हो गया. tan pi/4 की वैल्यू 1 होती है. क्या होती है? 1. तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 के इक्वल हो गया. तो x प्लस वाई यही रहा, 1 माइनस एक्स वाई उधर चला गया. अब एक्स वाई को इधर ले आए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1. ओके. सी अनदर वन, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x के इक्वल. साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x. ये लिमिट है, उसकी वैल्यू दे रखी है. ठीक. x गिवन है, साइन y के इक्वल लेट कर लिया यहाँ से. लेट x इक्वल्स टू साइन y. अब y हमारा किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स x के. लेट x इक्वल्स टू साइन y, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है हमें, साइन 2 थीटा वाला. तो साइन 2y इक्वल्स टू 2 साइन y कॉस y. साइन 2y इक्वल्स टू 2 साइन y कॉस y. अब ध्यान से देखिए, 2 साइन y ऐसे ही रखा, कॉस y क्योंकि साइन y की वैल्यू x है ना, तो कॉस y को इसमें साइन के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं. क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y. तो 2x साइन y x, और फिर ये भी x, तो 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बाई साइन y को x लिखा, और फिर ये साइन y, तो ये भी x हो गया. ठीक. अब ये साइन इधर आया, तो 2y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये अंदर आ. ठीक है. और y को फिर से साइन इनवर्स x लिख दिया. ठीक. तो इट इज 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू पहले हमने फाइंड की थी वो मतलब वैल्यूज यूज करके और फंक्शन को मतलब समझ के की थी. यहाँ पर वील यूज द प्रॉपर्टीज. ठीक. क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज. ठीक है. वहाँ अब फर्क है, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है. विद इन दिस लिमिट एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 टू पाई/2. ठीक. तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 के इक्वल हो जाएगा. माइनस ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 के, तो माइनस रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती? पाई/3 की. ठीक है. विद इन दिस इंटरवल साइन इनवर्स साइन पाई/3, तो इट इज नाउ साइन इनवर्स साइन हट गया, माइनस ऑफ पाई/3. अब माइनस पाई/3 माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है. ठीक है. कॉट इनवर्स माइनस 1/√3. कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स विद इन दिस इंटरवल. यहाँ पर एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है. ठीक. तो 1/√3 है, रखा, वही सेम वैल्यू है. वी नो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3, ये तो हट गया ना, कॉट.
तो पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक, क्लियर। ये भी दिया है सेक इनवर्स -√2, ठीक है, दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के विद इन दिस इंटरवल, ठीक। ये सारे इंटरवल्स आपने कर रखे हैं, ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक। बस इतना है कि आपको ध्यान रखना है, एंड एवरी टाइम इट इज़ देयर इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग टू, मतलब यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ओके। राइट इट सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं जैसे, तो x इक्वल्स टू कॉस एक्स वाई लेट कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है ना कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1, तो x इक्वल्स टू कॉस एक्स वाई पुटअप कर दिया। क्वेश्चन आपको बताएगा जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस में पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 है तो उससे क्या? कॉस एक्स में से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan में से, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका फार्मूला देगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स देगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर फॉर्म क्या है? √x स्क्वायर -1, वी पुट x इक्वल्स टू कॉसेक y, तो y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, जस्ट सी tan इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर y, ओके, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर y, क्यों? कॉसेक स्क्वायर y -1 कॉट स्क्वायर y के इक्वल होता है। tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट y, ये पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट y, 1 अपॉन कॉट y को tan y लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan y हट गया, ये आपका आ गया y मतलब कॉसेक इनवर्स x। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर -1 विल बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स वाई। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर -1 कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, कॉट इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर -1, ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पर क्या किया? x सेक y के इक्वल पुटअप कर दिया, ठीक है, y सेक इनवर्स x हो जाएगा, पुटअप करिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर y -1, tan स्क्वायर y ऊपर आया, कॉट y, तो कॉट इनवर्स कॉट y y के इक्वल हो जाएगा, भाई सेक स्क्वायर -y रखा ना, तो सेक स्क्वायर y -1, तो सेक स्क्वायर y -1, tan स्क्वायर y ऊपर गया, कॉट y ठीक, ओके। एक सिंपलेस्ट फॉर्म और देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें हम जो चेंज करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जब कभी भी इस टाइप की फॉर्म मिलती है तो हम cos को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक, क्योंकि cos 2x की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो हमने क्या लिख लिया? cos x है, एंगल हाफ कर देते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 को cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्यों? इधर एंगल हाफ है तो नीचे भी हाफ रखेंगे, ठीक है, साइन 2x 2 साइन x cos x, अब x है, एंगल हाफ है तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, तो मतलब क्या हुआ? cos x को लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। नाउ जस्ट सी, इसको क्या है? डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है, और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म का, मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 ये आ गया, और नीचे ये बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। जब tan में ये वैल्यू मिले, tan इनवर्स और ये cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, मतलब ये फॉर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस या नीचे माइनस, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको क्या करते हैं? cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया, ये 1 हो गया, क्या हो गया? ये 1, और ये बन गया आपका साइन x बाई 2 कौन cos x बाई 2, तो tan x बाई 2, सेम ये 1 हो गया, और ये tan x बाई 2। अब ध्यान से समझिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह पाई बाई 4 पुटअप कर दें, क्या कर दें? पाई बाई 4 रख दें, और बीच में x कर दिया, तो tan पाई बाई 4 माइनस x, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 है ना, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x किसके इक्वल हो गया? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, किसके इक्वल हो गया? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई हमें tan a माइनस बी में कि tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. क्या होता है वो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स. तो जस्ट सी इट इज tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू. तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू. ठीक, तो tan इनवर्स से tan हट गया, बचा क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू. यही इसकी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा था ना, द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू. ओके, ठीक, सो दैट इज ऑल.